السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ عزیزان گرام قدر، آج آپ کے بیچ حاضری کا شرف حاصل ہوا اور اس مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ میری باتوں پر آپ توجہ دیں گے اور اپنے نہا خانے دل میں اس کو جگہ دیتے ہوئے اس کے مطابق عمل پیرا ہوں گے۔ ہم لوگ جس ماہ سے گزر رہے ہیں، دراصل وہ ماہ عربی تاریخ کے اعتبار سے شعبان کا ماہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے۔ اور مہینوں کے بارے میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ مہینوں کے نام اور پھر مہینوں کے ایام کی تعداد، سال میں 12 مہینے کی گنتی، یہ تمام کی تمام چیزیں انسانوں کے ذہن و دماغ کی پیداوار نہیں ہیں۔ عام طور پہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کرنا یہ انسانی تجربے کی بنیاد پر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں قرآن مقدس میں اعلان کیا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ مہینوں کی تعداد اور گنتی اللہ کے نزدیک جس دن اللہ رب العالمین نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا 12 ہے۔ تو گویا سال کو 12 مہینوں میں منقسم کرنے کا معاملہ یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اللہ نے خود سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ تقسیم کب کی ہے اس کی جانب اللہ رب العالمین نے خود اشارہ کیا، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے کی بات آپ قرآن کریم کے حوالے سے بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے کئی مقامات پر آسمانوں و زمینوں کی پیدائش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اللہ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ذرا آپ غور کیجئے، ایک ہفتے میں 7 ایام ہوتے ہیں، تو ہفتے کو 7 ایام میں منقسم کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، یہ انسانوں کی جانب سے نہیں کہ ہم نے ہفتوں کو 7 دنوں میں، سال کو 12 مہینے میں تقسیم کیا اور مہینے کی گنتی کتنی ہوگی۔ یہ ساری کی ساری باتیں انسانی ذہن و دماغ سے باہر کی باتیں ہیں۔ خود اللہ رب العالمین نے ان کا تعین کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بیان کرتے ہوئے کہا، نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ہم امی امت ہیں، مہینہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اشارہ آپ نے کیا ہاتھوں کے انگلیوں کے ذریعے، یعنی عربی تاریخ کے اعتبار سے مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جس میں آپ نے بیان کیا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو، یعنی عید مناؤ۔ اگر بدلی ہو جائے، چاند دیکھنا ممکن نہ ہو، تو شعبان کی تعداد 30 پوری کرو۔ تو دونوں احادیث کو جمع کرنے سے پتہ یہ چلا کہ عربی تاریخ کے اعتبار سے مہینہ یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ 29 دن مکمل کرنے کے بعد ہمیں چاند دیکھنے کا حکم دیا گیا، اور اگر چاند نظر نہ آئے، بدلی کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے، یا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو چاند اگر نظر نہیں آتا ہے تو ہمیں مہینے کا تعین کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہم رمضان کو شمار کر لیں،
बल्कि इस्लाम ने यह कहा फ़अक्मिलू इद्दत शाबान सलासीन, अगर चाँद नजर ना आए बदली के सबब तो शाबान की गिनती 30 पूरी कर लो। हमारे बहुत सारे भाई ये बात कहते हैं, बहुत सारी बहनें ये बात कहती हैं कि अगर एहतियातन एक दिन का हम रोज़ा रख लें तो रोज़ा इबादत है, उसकी बड़ी फजीलत है, तो इसमें कौन से मदायके और हरज की गुनाह की बात है, रोज़ा ही तो है, इबादत ही तो है। इसलिए वो लोग शक की बुनियाद पर शाबान का चाँद अगर नज़र नहीं आता है तो एक दिन पहले वो रोज़ा रखने का एहतमाम करते हैं। ऐसे लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दोनों हदीसों पर गौर करना चाहिए। पहली हदीस जिसमें आपने हुक्म दिया कि अगर चाँद नज़र ना आए बदली की वजह से तो तुम शाबान की गिनती 30 पूरी कर लो, और दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन सामा यौम शक्की फ़क़द आसा अबुल कासिम, जिस शख्स ने भी शक के दिन रोज़ा रखा उसने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। आप जरा गौर कीजिए, शक के दिन रोज़ा रखने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और इस बात को बयान कर दिया कि शक के दिन रोज़ा रखना गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। शक के दिन से मुराद क्या है? शक के दिन से मुराद ये है कि अभी हम लोग शाबान के महीने से गुजर रहे हैं, चंद दिनों के बाद 29 शाबान पूरा हो जाएगा और रमज़ान के इस्तकबाल के लिए हर शख्स बेकरार नज़र आएगा। चाँद अगर नज़र नहीं आया तो बहुत से लोग तरावी का और रोज़े का एहतमाम कर देते हैं शक की बुनियाद पर, क्योंकि इस्लाम में इबादत की बुनियाद इल्म और दलील है, हुज्जत और बुरहान है। बगैर इल्म के, बगैर दलील के कोई भी अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में काबिल कबूल नहीं हो सकता। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। लिहाजा ज़रूरी है कि हम लोग इबादत को अंजाम देने के लिए इल्म और दलील का सहारा लें। यहाँ इल्म से मुराद ये है कि या तो हमने खुद चाँद को अपनी आँखों से देख लिया, या अगर हम खुद नहीं देख सके तो किसी काबिल एतमाद भरोसामंद इंसान की खबर पर एतमाद करते हुए रमज़ान की आमद को हम मोतबर समझें, रमज़ान की आमद को हम गनीमत जानें, और फिर रमज़ान में जो इबादत हमें अंजाम देनी है उन इबादत को अंजाम देने के लिए कमरबस्ता हो जाएं। लेकिन अगर चाँद हमने खुद नहीं देखा या हमें मोतबर खबर नहीं मौसूल हुई तो रमज़ान का इंतज़ार नहीं बल्कि शाबान की गिनती 30 पूरी करने का हमें हुक्म दिया गया है। और धमकी दी गई जो शख्स शक के दिन का रोज़ा रखेगा उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, क्योंकि महीने की आमद और महीने का दुखूल अल्लाह रब्बुल आलमीन के निज़ाम के मुताबिक चाँद के तुलू होने से मुक़य्यद है। अगर चाँद तुलू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना गोया दाखिल हो गया, लेकिन अगर चाँद तुलू नहीं हुआ तो इस्लाम का हुक्म यह है कि हम शाबान की गिनती 30 पूरी करें। 30 दिन पूरा करने के बाद फिर हमें चाँद देखने की फिक्र और कोशिश नहीं करनी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने इबादत को किसी इंसान की पैदाइश या मौत से मरबूत नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत को अपने निज़ाम के मुताबिक, अपनी कायनाती निज़ाम के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत को मुक़य्यद किया है, मरबूत किया है। जैसा कि खुद कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है वयसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास वल हज। ऐ नबी तुमसे लोग सवाल करते हैं हिलाल के बारे में। ऐ नबी आपसे लोग पूछते हैं हिलाल के बारे में। हिलाल पहली रात के चाँद को कहते हैं, तो हिलाल के बारे में लोग आपसे सवाल करते हैं, आप जवाब दे दो। ये वक्त का अंदाज़ा लगाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है। वह चाँद का नमूदार होना, तुलू होना, मुख्तलिफ मताले में उसका गर्दिश करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से हैं, और इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन वक्त का पता देता है। हमें हज के वक्त का पता चलता है, रमज़ान की आमद का इल्म होता है, इबादत को अंजाम देते हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीगर बहुत सारी हिकमतें इससे वाबस्ता हैं। बहर सूरत मालूम यह हुआ कि ये महीना जिसके हम शाबान के नाम से जानते हैं, इस महीने के बारे में और दीगर तमाम महीनों के बारे में ये बात मुत्तफ़क़ अलैह है, इस बात पर इजमा है कि किस महीने में कौन सी इबादत अंजाम दी जाएगी, किस महीने का मर्तबा और रुतबा क्या है, किस महीने की फजीलत क्या है, उसका मुकाम और मर्तबा अल्लाह ने क्या मुतय्यन किया है। ये चीज़ें इंसानों के अपने मिजाज के मुताबिक, इंसानों के ज़हन दिमाग के मुताबिक नहीं हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा कि महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक 12 है, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उन 12 महीनों में 4 हुर्मत के महीने हैं। तो इन महीनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद मुरत्तब किया,
मुनक़सिम किया और इन 12 महीनों में क्या किस महीने की खूबी है, अज़मत है और कौन सा अमल किस महीने में अंजाम दिया जाएगा, इस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत वाज़ेह तौर पे अपनी किताब में बयान किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत इन महीनों की तफसील पेश करती है। इन महीनों की तफसील जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिले, हमें उसके मुताबिक उन महीनों को अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए। मसलन आप जानते हैं रमज़ान का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे कुरान के नुज़ूल के लिए ख़ास किया, रोज़ों के लिए ख़ास किया। और रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी आशरे में ऐसी ताक़ रातें मुकर्रर की हैं जो इंतहाई कद्र मंजिलत की रातें हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत का सवाब बहुत ज़्यादा कर देता है। और पूरे साल के अमाल, पूरे साल में इंसान कौन सा अमल अंजाम देगा, उसको कितना रिस्क मिलेगा, कितना महरूमी उसके मुकद्दर में आएगी, और इंसान की सेहत और बीमारी का सारा मसला अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान के आखिरी आशरे में ताक़ रातें जो है उनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकर्रर करता, मुतय्यन करता है। और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के बयान के मुताबिक उन चीज़ों की अहमियत और उन चीज़ों की फजीलत को समझना होगा। आप जरा गौर कीजिए, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना जिसे कुरान के नुज़ूल के लिए ख़ास किया गया है। रमज़ान के महीने में कुरान को नाजिल किया गया, तो गोया कुरान की जो फजीलत है, उसके नुज़ूल का जो मामला है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान से मरबूत किया है। इसीलिए रमज़ान को कुरान का महीना कहते हैं। और मुसलमानों की ज़िंदगी में कुरान से जो ताल्लुक़ और रब्त पैदा होता है रमज़ान में, दीगर महीनों में नहीं होता है। एक तो कुरान के नुज़ूल का महीना, दूसरे जिब्रील अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान लेकर आते थे। जिब्रील खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को पेश करते थे, सुनाते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील पर कुरान को पेश करते थे। और ये अमल कुरान को सुनने सुनाने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के बीच हुआ करता था। जिस साल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत मुकद्दर किया था, उस साल 2 मरतबा जिब्रील ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को पेश किया। और कुरान की जो फजीलत है उसको पढ़ने और पढ़ाने की, उसको पेश करने की, सुनने और सुनाने की, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा, इब्न मसूद से कहा, इक़रा अलैया, तुम मुझ पर कुरान पढ़ो। सहाबी ने कहा, अलैका अक़रा व अलैका उन्ज़िल, आप पर कुरान को पढ़ूँ मैं, आप पर कुरान का नुज़ूल हुआ है, तो फिर आपको मैं कुरान सुनाऊँ? अल्लाह के रसूल ने फ़ौरन कहा, वहिब्बु अन अस्मा मिन गैरी, मुझे बात महबूब है कि अपने अलावा दूसरे इंसानों से मैं कुरान को सुनूं। चुनांचे सहाबी ने कुरान को पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि जब वो आयत करीमा फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा, इस आयत करीमा पर पहुँचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा, हस्बुक हस्बुक, ठहर जाओ, रुक जाओ। और नबी की हालत ये हुई, नबी का आलम ये था कुरान को सुन करके कि सहाबी कहते हैं कि आपकी आंखों से अश्क जारी हो गया। जरा आप गौर कीजिए, नबी कुरान को सहाबी की ज़ुबान से सुनते हैं, आयत पे गौर करते हैं, और उम्मत के बारे में इस आयत में जो अल्लाह ने खबर दी और नबी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बात बताई, उस बात को सोचकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गईं। क्या आयत करीमा पैगाम है? फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, ऐ नबी उस वक्त का आलम क्या होगा जब हर उम्मत से हम गवाह बनाकर पेश करेंगे। वो जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा, और तमाम उम्मत के लिए आपको गवाह बनाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन पेश करेगा। तो मालूम ये हुआ कि इस उम्मत के लिए, नबी के लिए, कुरान के लिए गुज़िश्ता उम्मतें गवाही देंगी, और तमाम उम्मतों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाया है। इस बात को सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गईं, और आपने सहाबी से कहा, बस यहीं ठहर जाओ। इससे एक बात और मालूम हुई कि कुरान की तिलावत जब ख़त्म हो, तो हमारे यहाँ जो लोगों ने रवाज बना रखा है कि जब कुरान की तिलावत ख़त्म करते हैं तो सदक़ल्लाहुल अज़ीम कहते हैं। नबी ने सहाबी से क्या कहा? तुम मुझे कुरान सुनाओ, कुरान मुझ पर पढ़ो। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने से रुकने का हुक्म दिया, तो आपने क्या कहा?
हसबुक, काफ़ी है, बस रुक जाओ, ठहर जाओ। मालूम ये हुआ कि अल्लाह की किताब कुरान करीम की तिलावत करने का जो हुक्म है इस्लाम में, और किसी इंसान को अगर कुरान की तिलावत करने की तौफीक हो तो हस्बे वक्त वो कुरान की तिलावत करे, और जहां उसको कुरान की तिलावत बंद करना हो वो अपनी तिलावत को वहां मुनक़ता कर दे। वहां किसी दुआ के पढ़ने का, सदक़ल्लाहुल अज़ीम कहने का और दूसरी चीज़ों का सबूत नहीं है। इसलिए काफ़ी है कि हम लोग जैसे नमाज में जब इमाम कुरान की आयात की तिलावत करके रुकू जब करना चाहता है तो अपनी तिलावत को मुनक़ता करके अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाता है, ठीक इसी तरह से जब भी किसी इंसान को कुरान पढ़ना हो तो कुरान की तिलावत मुनक़ता करके वो अपने काम में निकल जाए, या जो भी उसे करना हो करे। उसके बाद किसी दुआ हुआ पढ़ने का इंसान एहतिमाम ना करे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। तो पहली आयत करीमा जो मैंने आपके सामने सूरह बकरा के हवाले से पेश की, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, कुरान की नुज़ूल का महीना है। अगर इस बात को आप समझना चाहें कि रमज़ान का महीना 29 दिन का होगा या 30 दिन का होगा तो कुरान कब नाजिल हुआ, इस सिलसिले को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बय्यिना में बहुत वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्री, इस कुरान को हमने लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। तो मालूम यह हुआ कि कुरान की नुज़ूल का महीना रमज़ान का महीना है। रमज़ान में लैलतुल क़द्र की रातें हैं जो कुरान की नुज़ूल के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मखसूस हैं। गोया मुकम्मल तौर पे कुरान का नुज़ूल अल्लाह रब्बुल आलमीन के मर्ज़ी के मुताबिक एक बारगी जो नुज़ूल हुआ वो रमज़ान के महीने की ताक, आखिरी अशरे की ताक रातों में जिन्हें लैलतुल क़द्र कहा गया कुरान के मुताबिक, उसमें कुरान का नुज़ूल हुआ है। और इसी कुरान के नुज़ूल के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक और मुकाम पर ऐलान किया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, हम डराने वाले हैं। किस बात से डराने वाले? कुरान के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को डराता है अपने आदाब से, अपनी गिरफ्त से, आखिरत से, कब्र और बरज़ख की ज़िंदगी से। दुनिया में इंसान अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है तो दुनिया में इंसान को आदाब से डराया गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हम इंसान को डराते हैं। तो एक जानिब अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सिफ़ात हैं तो उन सिफ़ात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आज़ीम सिफ़त यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत देने के लिए, कामयाबी की बशारत, अल्लाह की मदद की बशारत, खुशगवार ज़िंदगी की बशारत। तो दूसरी जानिब नज़ारत अल्लाह के रसूल की ख़ास सिफ़त है। नज़ारत का मतलब क्या हुआ? अगर बशारत देते हैं रसूल तो डराते भी हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बशीर और नज़ीर बनाया है। बशीर का मतलब बशारत देने वाले, खुशखबरी सुनाने वाले, जन्नत और उसके इनामात को बयान करने वाले, जिससे शौक़ पैदा हो जाए, इंसान के अंदर एक तड़प पैदा हो जाए, लालच पैदा हो जाए जन्नत और उसकी नेमतों की। लेकिन जहां एक मोमिन की ज़िंदगी में जन्नत और उसके नेमतों की लालच पैदा होती है, वहीं ज़रूरी है कि जहन्नम का खौफ भी पैदा हो, जहन्नम की तबाही, हौलनाकी और जहन्नम के आदाब का डर इंसान के दिल में पैदा हो। ये दोनों चीज़ें अगर मुसलमान की ज़िंदगी में साथ साथ है तो वो मोमिन है, वो कामयाब है। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ का गलबा हो गया, मतलब जन्नत का शौक़ इतना ज़्यादा पैदा हो जाए कि आदाब से हम अपने आप को मामूल समझ लें, तो ये इंसान के लिए ख़तरनाक मामला है। और इसी के साथ साथ अगर हमारे अंदर आदाब का ऐसा शऊर, एहसास बेदार हो जाए कि जन्नत और उसकी नेमतों और उसकी रग़बत से हम महरूम अपने आप को समझ लें, तो ये हमारे लिए ख़तरनाक बात है। लिहाजा दोनों चीज़ों से एक मुसलमान को बचकर दोनों चीज़ों पर अपने आप को बागी रखना होगा। एक जानिब अगर जन्नत का शौक़ है तो दूसरी जानिब जहन्नम का आदाब हमारी निगाहों के सामने हमेशा रहना चाहिए। एक मुसलमान से अगर कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई ख़ता हो जाए, गीबत किसी कर बैठे, किसी को तकलीफ पहुंचा दिया, तो फ़ौरन उसके दिल में एहसास बेदार होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का आदाब मेरा मुकद्दर बन जाएगा, अल्लाह मुझे गिरफ्त में ले लेगा, मुझे सज़ा से दो चार कर देगा। ये एहसास इंसान को बुराइयों से रोकेगा। लेकिन अगर एहसास कमजोर पड़ जाए कि इंसान से गुनाह हो जाए, इंसान को उसका शऊर ना हो, इंसान गुनाह कर बैठे, हठधर्मी कर बैठे, तो ऐसा इंसान गोया अपने आप को जरी बना लेता है, अल्लाह के आदाब से अपने आप को मामून और महफूज कर लेता है। और जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदाब, उसकी गिरफ्त से अपने आप को मामून महफूज कर ले, वो इंसान नाकाम इंसान है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा कि हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया, हम डराने वाले हैं।
उस मुबारक रात के बारे में अल्लाह ने कहा फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, हर हिकमत पर मबनी फैसला हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी रात में मुकर्रर करता है। इन सारी आयत को अगर आप जमा करें तो पता ही चलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के नुज़ूल के बारे में खबर दी कि हमने रमज़ान के महीने में कुरान को नाजिल किया। अल्लाह ने इस बात की खबर दी कि हमने लैलतुल क़द्र में कुरान को नाजिल किया। अल्लाह ने इस बात की खबर दी कि मुबारक रात में कुरान का नुज़ूल हुआ। अब ये मुबारक रात जिसमें कुरान की नुज़ूल होने की बात बताई गई और जिस रात के बारे में अल्लाह ने ये कहा कि हर मामले का फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी रात में करता है, तो ये रात कौन सी है? क्या शाबान के महीने में रात है, जैसा कि हमारी अक्सरियत इस बात को पेश करती है और उसका ढिढोरा पीटती है और उसके सिलसिले में बड़ा एहतमाम करती है? अगर इन तमाम आयात पर आप गौर करें, जमा करें, तो यकीनी तौर पर बगैर किसी शक व शुबहे के ये बात कही जा सकती है कि मुबारक रात, कद्र की रात, ताज़ीम की रात, और जिसे शब कद्र कहते हैं, और जिस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल का फैसला करता है, ये तमाम की तमाम खूबियां और कमालात रमज़ान के हिस्से में है, शाबान के हिस्से में नहीं है। ये तमाम की तमाम खूबियां अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान के हिस्से में रखा है। इसी के साथ अगर आप आयशा सिद्दीक़ा से मरवी हदीस और दीगर सहाबा किराम से मरवी हदीस पर आप गौर कर लें, जिन अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा किराम बिल-इजमा जिक्र करते हैं कि इज़ा दखला अल अश्रुल अखीर शद्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़रहु वाहिया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु, जैसे ही रमज़ान का आखिरी आशरा दाखिल होता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते थे, रात बेदारी करते थे, अपने अहल वयाल को बेदार करते थे। तो ये तीन बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा की हदीस में पेश की गई हैं। पहली बात तो ये कि जब आखिरी आशरा दाखिल होता था, रमज़ान का आखिरी आशरा, शाबान का निस्फ नहीं कि 15 शाबान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल रहो, नहीं, बल्कि रमज़ान का आखिरी आशरा दाखिल होते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते थे। किसके लिए? इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर लेते थे, एतिकाफ करते थे, दुनिया और उसके तमाम मुताल्लिक चीज़ों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनियाज होकर एक सूई के साथ अल्लाह की इबादत, कुरान की तिलावत और अपनी बंदगी का इजहार करते थे और शब-बेदारी करते थे। तो सहाबे किराम का, अइम्मे अरबा का और दीगर जो हमारे बड़े अकाबिर गुजरे हैं, उन तमाम लोगों का इस बात पर इजमा है कि मुकम्मल शब-बेदारी, आप जरा मेरी बात को गौर से सुनिए, मुकम्मल शब-बेदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अगर पाई गई है तो शब कद्र में पाई गई है, लैलतुल कद्र में पाई गई है, रमज़ान के आखिरी आशरे की ताक रातों में या मुकम्मल आखिरी आशरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब-बेदारी करते थे, कुरान की तिलावत के लिए, अल्लाह से दुआ के लिए, इस्तिग़फ़ार के लिए और दीगर इबादत को अंजाम देने के लिए। तो मालूम यह हुआ कि शाबान का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मुतय्यन करदा मखलूक है, अल्लाह ने इसे मुकर्रर किया है, और इस महीने में इबादत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ख़ास हुक्म का, किसी ख़ास इबादत का हमें हुक्म नहीं दिया, बल्कि जो ख़ास इबादत रमज़ान के महीने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, उस इबादत को लोगों ने लाकर जोड़ कहाँ दिया? शाबान के महीने में। और फिर शाबान के महीने में शब-बेदारी करना, चिरागा करना, कब्रों को रोशन करना और जश्न का एहतमाम करना और अपने महल्ले में सजावट, अच्छी पकवान, ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर आप गौर करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दूर दराज कहीं इन चीज़ों का कोई सबूत नहीं मिलता, क्योंकि 15 शाबान के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहादीस मरवी हैं, उन तमाम अहादीस में सिर्फ एक हदीस सही है, जिस हदीस में अमल का कोई तज़किरा नहीं है, बल्कि वो जायज़े की रात है, इनाम की रात है, इकराम की रात है, रिजल्ट की रात है। और दुनियावी कायदा इस्लाम का कायदा ये है कि रिजल्ट के लिए, जायज़े के लिए, इनाम के लिए उस वक्त मेहनत की, इबादत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसके पहले इंसान अपनी मेहनत, इबादत अंजाम दे चुका होता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये इनाम इंसान को मिलता है कि इंसान की मग़फ़िरत होती है, सिवाय मुशरिक और मुशाहिन के, कीना परवर मुशरिक के अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान
इंसानों की मग़फ़िरत करता है, तो इसकी सबसे अज़ीम खूबी यह है कि मग़फ़िरत की रात है सिर्फ बस। लेकिन इस मग़फ़िरत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मग़फ़िरत तलब करने के लिए शब बेदारी करना, इबादत का एहतमाम करना, कुरान की तिलावत का एहतमाम करना, इन तमाम चीज़ों का कहीं से भी नबी की ज़िंदगी में, सहाबा किराम की ज़िंदगी में सबूत नहीं है। क्योंकि मैंने अभी आपके सामने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुकम्मल रात को बेदार रहने का जो तज़किरा मिलता है वो रमज़ान के आखिरी अशरे में, मुकम्मल आखिरी अशरा, या कम अज़ कम ताक रातों में शबे कद्र की तलाश के लिए, उस फजीलत के हुसूल के लिए इंसान अल्लाह की इबादत में अपने आप को मशगूल रखे। लेकिन अफसोस ये है कि हमने चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इबादत को अंजाम देने की कोशिश नहीं की, इसलिए बड़े खैर से हम महरूम हो गए। आपके शहर के बारे में नहीं कहता, लेकिन मैंने अपने यहाँ देखा जहाँ मेरा जाना हुआ है, जिन लोगों की ज़िंदगी में 15 शाबान की शब को एहतमाम किया जाता है, शब बेदारी का, रत जगह का, ऐसे लोग रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में और पूरा आखिरी अशरा सोते हुए नजर आते बेचारे। वो उनको ये तौफीक नहीं होती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो परफेक्ट अमल है, जिसमें आपने मुकम्मल शब बेदारी किया, अपने अहल वयाल को बेदार रखा, मुकम्मल रात अल्लाह की इबादत में गुजारा, ऐसी रातों में लोग सोते हैं और उन रातों में जागने का एहतमाम करते हैं जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जागने का एहतमाम नहीं मिलता है। तो मेरे भाइयों, मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता था कि ये महीना शाबान का अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से पैदा करता है। अल्लाह ने उसका नाम मुतय्यन किया और उसका वक्त भी मुतय्यन किया, और उस वक्त के सिलसिले में हमें ये बात जाननी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने निज़ाम के मुताबिक इस महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में, रमज़ान के बाद, ज़रा आप गौर से सुनिए, रमज़ान के बाद शाबान में जितना ज़्यादा रोज़े का एहतमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, दीगर महीनों में नहीं करते थे। रमज़ान में तो सभी रोज़ा रखते हैं, सफ़र फ़र्द है, लेकिन 11 महीनों में जो एहतमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रोज़े का इस महीने में पाया गया, बाकी और महीनों में नहीं पाया गया। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास हुक्म था, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की तरबियत में कहा था कि कौन तुम में से कौन मेरी तरह से है, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुव्वत दिया है, लिहाजा मैं इस महीने में कसरत से रोज़ा रखता हूँ। उम्मत को आपने जो दर्स दिया वो दर्स इससे मुख्तलिफ है। उम्मत को दर्से हुआ कि उम्मत अगर रोज़ा रखना चाहती शाबान के महीने में तो निस्फ शाबान से पहले रोज़ा रखे वो, लेकिन निस्फ शाबान जब हो जाए तो उम्मत को रोज़ा रखने से मना कर दिया गया। इदन तसफ़ शाबान फला तसूमू, जब निस्फ शाबान हो जाए तो रोज़ा मत रखो, ये उम्मत के हक में है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते खुद बनफ्स नफीस इस महीने में जितना रोज़ा रखते थे, दीगर महीनों में उस कदर रोज़े का एहतमाम आपकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं था। अब उम्मत के लिए 15 शाबान के बाद रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इल्ला कि किसी इंसान का रमज़ान का छूटा हुआ रोज़ा हो, ख़ास तौर पे औरतें जो अपने हैज़ के अय्याम का रोज़ा रमज़ान के बाद दीगर महीनों में कज़ा ना कर सकी हों और शाबान का महीना दाखिल हो जाए तो उन्हें लाजिमी तौर पे उन छूटे हुए रोज़ों की कज़ा करनी चाहिए। बाकी उम्मत के अफराद को चाहिए कि इन दिनों में रोज़ा रखने से अपने आप को बाज रखें। मेरे भाइयों, इसी के साथ ये बात जाननी चाहिए, और मैंने उस बात की जानिब इशारा भी किया कि रमज़ान की आमद का तयक्कुन चाँद के जरिए होगा, लिहाजा चाँद को या तो खुद इंसान देख ले या चाँद की खबर उसको मौसूल हो, तब वो रमज़ान की आमद का यकीन रखे। और अगर चाँद देखा नहीं, खबर मौसूल नहीं हुई, तो शाबान की गिनती उसे 30 पूरी करनी होगी बहर सूरत। फिर उसके बाद रमज़ान के दुखूल का इंसान को यकीन करके इबादत अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शक के दिन का रोज़ा रखना इस्लामी शरीयत में ममनू है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत है। हम अपने नाकिस अक्ल के मुताबिक ये सोच सकते हैं जनाब रोज़ा है, इबादत है, अगर एक दिन ज़्यादा रोज़ा रख लिया तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ वही है जिसको नबी ने बयान किया हो, जिस पर अमल हमारे नबी ने किया हो, जिसको अल्लाह ने पेश किया हो। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं मन साम यौम शक्की फ़क़द आसा अबुल क़ासिम, जिसने शक के दिन का रोज़ा रखा उसने अबुल क़ासिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुन्नियत है उनकी मुखालफत की। इसलिए 29 शाबान मुकम्मल करने के बाद अगर चाँद की खबर मौसूल नहीं होती है तो शाबान की गिनती 30 पूरा करना हम पर फ़र्द है। किसी भी शक्ल में इंसान एहतियात के नाम पर
یا روزہ عبادت کے نام پر ایک دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دے، یہ دین میں اضافہ ہوگا، اور دین میں اضافے کا حکم آپ جانتے ہیں اسلام میں حرام ہے، جسے صاف طور پہ بدعت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ شعبان کو مکمل کریں اور شعبان کی تکمیل کے بعد ہی رمضان کے روزوں کا آغاز کریں، جب اس کی خبر ہمیں موصول ہو جائے یا جب چاند نظر آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان بہترین باتوں کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ چونکہ ہمارے درمیان فضیلۃ الشیخ رفیع الدین الریاضی حفظہ اللہ بھی تشریف فرما ہے، میں خود چاہتا ہوں کہ شیخ کے کلمات سے مستفید ہوں، اس لیے انہی کلمات پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان کے مطابق عمل کی توفیق دے۔